ప్రభుత్వం ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి అత్యంత దుర్మార్గమైనటువంటి యొక్క నిర్ణయాలు, దాని యొక్క ప్రభావానికి సంబంధించిన అంశాన్ని మాట్లాడటానికి చెప్పని వారు ఇక్కడికి వచ్చినారు. వారిని నేను మీకు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలుపుతూ వారికి నేను ఆహ్వానం తెలుపుతా ఉన్నాను. వారు మోహన్ ప్రకాష్ గారు, నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్, తర్వాత గతంలో ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీకి ప్రధాన కార్యదర్శిగా వారు పనిచేసినారు. ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ థింకర్, ఇంటలెక్చువల్, and not only intellectual but man of the masses and leader of the people's movement. ఎందుకు చెప్తున్నాం ఈ మాట అంటే 1969 కాలంలో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు కావచ్చు, ఆ రోజు అత్యంత కీలకంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా జాతీయ స్థాయిలో వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊతమిచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకులు వారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలుపుతూ నేను ఇక్కడికి వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వారు బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ ఎంఏ చదువుకున్నారు. తర్వాత పాత్రికేయ మిత్రుల వల్ల జర్నలిజం కూడా చేసినారు. అక్కడ బిహెచ్ఈలో విద్యార్థి సంఘ అధ్యక్షుడిగా కూడా చాలా కాలం పాటు పనిచేస్తున్నారు. వైబ్రెంట్ స్టూడెంట్ లీడర్, ఒక విద్యార్థి దశ నుండి ప్రజా జీవితంలో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ రాజస్థాన్లో అత్యంత పేరు మోసినటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి నాయకులు వారు. వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇకపోతే అంశానికి వచ్చినట్టయితే, ఎందుకు ఇవాళ కొత్త సంవత్సరం, ఎందుకు ఇంత ఆదరా బాదరగా ఈరోజు ఈ సమావేశాన్ని పెట్టుకుంటున్నామంటే, జనరల్ గా కనుక మనం చూసినట్టయితే కొత్త సంవత్సరం రాగానే పాత మంచి చెడు అన్ని మర్చిపోయి కొత్త సంవత్సరం కొత్త అనుభూతులు కొత్త ఆశతో మనం బతుకుతూ ఉంటాం. దీన్ని ఆసరాగా పెట్టుకుని వాళ్ళ పాలిస్తున్నటువంటి పాలక వర్గాలు, రాష్ట్రంలో కానీ కేంద్రంలో కానీ పాలక వర్గాలు గతంలో వాళ్ళు నిరంతరం చేస్తున్నటువంటి తప్పులన్నీ కూడా తప్పిపుచ్చుకుంటూ మనం మభ్యపెడుతూ పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. మూలిగే నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు అన్నట్లుగా ఇవాళ జిఎస్టీ పెంచి బట్టల మీద, చెప్పుల మీద, ఊబర్, ఓలా, సిమెంట్, స్టీల్ ఇట్లా అనేక రకాల అంశాలపైన జిఎస్టీ పెంచేసి నిత్యావసర వస్తువులు పెంచి పేదవాడు బతకడమే కష్టం అనేటువంటి రీతిలో ఇవాళ పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం, భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వల్లే ఎట్లయితే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అన్నిటిపైన ట్యాక్సులు పెంచేసి ప్రజల జీవితాలను దుర్భరం చేస్తుందో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కూడా అట్లాగే పనిచేస్తా ఉంది. కాబట్టి దీనిలో ప్రజలందరికీ తెలియజేయడం కోసం, చైతన్యపరచడం కోసం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా పత్రికా సమావేశాలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు. సుర్జేవాలా గారు, రణదీప్ సింగ్ సుర్జేవాలా గారు, తర్వాత సోనియా గాంధీ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ వారు ఇక్కడికి వచ్చినారు. వారు ఇంకా వివరంగా ఇవాళ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏ రకంగా పేదవాడు, మధ్య తరగతి కుటుంబీకులు బతకవే భారంగా అన్నట్టుగా ఉండేట్టుగా ఏ రకంగా ఈరోజు నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగే విధంగా వ్యవహరిస్తున్న అంశాల పట్ల వారు కూలంకషంగా మీ అందరి ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. ఫ్లోర్ ఇస్ యువర్స్. Respected PCC President Governor Reddy ji, my friend Mahesh Gowda ji, Sarvan ji, Manu Ravi ji, and my colleague and friend Senna Reddy ji, our friends. First of all, very happy New Year greetings from our party side, and God bless you and your family, good health and happiness. And if you allow me to speak in Hindi, it is better because I have comfortable in Hindi. If you allow me, Mitro, the sound is okay? Mitro, आज 1 जनवरी है। मोदी सरकार ने इस देश को और आम जन को महंगाई का तोहफा दिया और इससे एक आदमी प्रभावित होगा। पहले ही मोदी सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई से परेशान इंसान था, लेकिन आज से जो नए टैक्स लगे हैं उन टैक्सों के चलते हर वर्ग का आदमी
और हर एक चीज में ये परेशानी होने का काम होगा। आपको विस्तृत ये नोट देंगे, लेकिन अभी कपड़ा उद्योग जो पहले से संकट में है, उस पर 5% जीएसटी से 12% कर, और ये 1000 तक के कपड़े पर। अब जो सामान्य आदमी है ये उसके ऊपर छूट है। हालांकि उन्होंने फरवरी तक उसको पोस्टपोन किया है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे। लेकिन प्रश्न ये है कि जो बेसिक है, आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी जमाने में मिल मालिकों को यह बाध्यता थी कि 6% आप मोटा कपड़ा बनाएंगे। हमारे समय में, कांग्रेस के समय में भी जो 1 करोड़ तक का बिजनेस करते थे, उनके ऊपर कोई वैट या एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। इसकी वजह से ये जो छोटे जो लोग थे, जो वस्त्र उद्योग में लगे हुए थे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। कितना बड़ा सेक्टर है वो हैंडलूम, कितना बड़ा सेक्टर, उन सब पर ये चोट की गई है, आज से लगा है। इसके अलावा जूता है, यहां तक कि कफन पर भी 12% टैक्स का प्रस्ताव आज लागू करने का काम किया, कफन। और जो बच्चे हैं प्री स्कूल, उनकी वो जो ड्राइंग बुक होती है और वो होती है, उस पर भी 12% टैक्स मोदी सरकार ने लगाने का काम किया। स्टील है, लोहा है, सीमेंट है, एवरीथिंग। अभी तो पेट्रोलियम की मार से जनता करा रही थी, और ये सारी चीजें, इन पर भी टैक्स ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो हमारा ये है सेक्टर, जैसे आप ओला में, उबर में चलते हैं, तो उस पर भी 5% टैक्स। एटीएम है, एटीएम में हमारा पैसा है, हमारा बैंक है, लेकिन आप तय लिमिट के बाद अगर पैसा निकालेंगे तो आपके ऊपर 21 रुपया प्रति निकासी में कट जाएगा। अभी जो बच्चे हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, बाहर हॉस्टल में रहते हैं, ये 100-100, 200 रुपया जरूरत होती है तो निकालते हैं। अब इनका 21 रुपये कट गया, यानी लूट मची है। और इस देश की जनता लगातार 2 लोगों के प्रहार से, एक मोदी सरकार का टैक्स और दूसरी तरफ मोदी जी के जो चहेते, जो पूंजीपति हैं, उनकी जो महंगाई की लूट चल रही है। मित्रों, महंगाई होती है, अगर 10 रुपए का माल 15 रुपए में बिके तो उसको आप महंगाई कह सकते हैं। और महंगाई हमारे समय में भी होती थी, यानी कांग्रेस के समय में भी होती थी, लेकिन वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अंत में सरकार इंटरवीन करती थी और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती। लेकिन अगर 10 रुपए का माल 25 रुपए और 30 रुपए में बिके तो वो महंगाई नहीं है, वो लूट है। और मोदी सरकार ने इस देश के पूंजीपति, जमाखोर, मुनाफाखोर लोगों को लूट की छूट दे रखी। वरना क्या वजह है कि खाने का तेल 200 रुपए से ऊपर जा रहा है? क्या वजह है कि दवाइयों पर आज आप खरीदिए, 1 हफ्ते बाद खरीदिए तो फिर दाम बढ़ेंगे? दाल पर क्या वजह है कि 100-200 रुपया, 150 रुपया बिक रहा है? और क्या मोदी सरकार को मालूम नहीं? क्यों नहीं इंटरवीन? अभी साल भर से हो गया, क्यों नहीं इंटरवीन हो रहा? क्यों? क्योंकि इस देश के 6 लोग हैं बड़े घराने, जो कि तेल के पूरे देश के व्यापार को संचालित करते हैं, और ये लोगों से लाभार्थी है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी, अगर आप में पारदर्शिता है तो इलेक्शन बॉन्ड को सार्वजनिक करिए, मालूम पड़ जाएगा कि ये जो लूटने वाले लोग हैं किस पार्टी को मदद कर रहे हैं, जिस वजह से जो लूट है वो बंद होने का काम इस देश में। हमारे देश के प्रधानमंत्री को समय कम है, 4 बार कपड़ा बदलते हैं और 4 बार मेकअप होता है, काफी समय उसी में निकल जाता है।
और फिर उसके बाद उनके पूंजीपतियों किसको कहां बेचना है, इसमें कुछ समय निकल जाता है, बाकी समय निकलता है कि कहां पर टैक्स लगाना। लेकिन अगर टैक्स का लाभ इस देश के गरीब लोगों को हो तो भी कोई बात नहीं। फिजूल खर्ची में हो रहा है, फिजूल खर्ची, जहां 6000 करोड़ तो खाली विज्ञापन में खर्च हो गया और 7 साल में 5 बार गाड़ी बदल दी। अभी 14 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, जिस पर मोदी जी चल रहे हैं, और जहां भी उत्सव होता है उस पर खर्च हो रहा है। लेकिन इस देश के अंदर किस तरीके से लोगों को राहत देने का काम हो, इस पर कभी विचार नहीं हुआ। या एक शब्द प्रधानमंत्री ने बोला। कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक हिस्सा है। मित्रों, इतना ही नहीं है, मैं आपको चंद उदाहरण देना चाहता हूं कि किस तरीके से इस देश के अंदर बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहा है। आमतौर पर होता क्या था कि कभी महंगाई होती थी या बेरोजगारी बढ़ती थी तो सरकार ऐसे कदम उठाती थी जिससे कि उन महंगाई को रोकने का काम हो, बेरोजगारी को कम करने का काम हो। लेकिन यहां पर और ज्यादा बढ़ाने का जो कदम है वो चल रहा है मोदी सरकार के द्वारा। उदाहरण देता हूं कि LIC इस देश की लाइफलाइन है और ये LIC मुनाफे में है। हम पहले 12 से 17 तक जो पंचवर्षीय योजना थी, हर पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के उस पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में LIC पैसा देती थी। 7 लाख करोड़ की एसेट है उसकी, 24 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं, 1.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उसके 25% शेयर को बेचने का काम मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। BPCL है, BPCL आपको याद होगा, जो पुराने लोग होंगे, कि जब 71 का वार हुआ था तो बर्मा शेल कंपनी थी जो अमेरिका की कंपनी थी। वॉर के समय में उन्होंने सप्लाई बंद की। उसके बाद इंदिरा जी ने उसका राष्ट्रीयकरण किया और राष्ट्रीयकरण करने के बाद ये BPCL बनी, संसद से बनी। 4 इसकी रिफाइनरी है, 3 अपनी और 1 साझे में। 16,000 पेट्रोल पंप है, 7,000 उसके गैस एजेंसी है। 26,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकार को ये टैक्स और डिविडेंड के रूप में देती, उसको बेचा जाता। जो आज 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपया खर्च करके भी BPCL जैसी कंपनी नहीं खड़ी की जा सकती। और एयरपोर्ट तो आप देख ही रहे, पोर्ट आप देख ही रहे। एक और बचा है ड्राई पोर्ट, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको भी बेचने का काम मोदी सरकार ने फैसला कर लिया। देखिए, इसमें 80 पोर्ट हैं, ड्राई पोर्ट जिनको हम कहते हैं। इसमें 41 रेलवे की जमीन पर है। और खेल देखिए कि बैंक रेलवे को देगा पैसा 8,000 करोड़ और माल जाएगा अडानी जी। अच्छा, अडानी जी अपना पैसा लगा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन बैंक से लेके सरकार की मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को खरीदा जा रहा है और मोदी जी बेच रहे हैं। क्या होगा इससे? बैंक 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी ने किया। 69 से लेकर 2021 तक एक भी बैंक 2014 तक कोई बैंक फेल नहीं, और 14 से 21 के बीच में 3 बैंक फेल हुए। और इतना ही नहीं है, जिस दिन किसी कानून को वापस लिया उसी के अगले दिन SBI और अडानी कैपिटल के साथ MOU हो गया। सोचिए आप, SBI जो
सेंट्रल बैंक है एक तरीके से, जैसे अमेरिका में है उस तरह से भारत का सेंट्रल बैंक है, उसका और अडानी का कैपिटल का एमओयू हो रहा है। क्या कि हम किसानों को दूर दराज के इलाके, देखिए 22,500 शाखाएं एसबीआई की हैं और अडानी कैपिटल की 60 शाखाएं, सिर्फ 60, और जिसमें से एसबीआई की जो शाखाएं हैं 30,000 के आसपास, ये ग्रामीण या सेमी ग्रामीण इलाकों में उसकी शाखाएं, और 1,20,000 करोड़ रुपया अब तक वो दे चुके हैं, अब तक वो दे चुके हैं किसानों को। लेकिन अब होगा क्या, देखिए कि कुछ इलाके उनके हो जाएंगे कि अडानी कैपिटल से यहाँ पर किसानों को लोन देगी, किसके लिए, ट्रैक्टर के लिए, मशीनरी के लिए, इन सब चीजों के लिए। और होगा क्या उससे कि बाद में किसानों की जमीन हड़पने का काम अडानी। कोई हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी देशभक्त जो काम नहीं कर सकता वो मोदी जी ने कर दिया। 41 इस देश के अंदर 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो भारत के सेना के पास जो हथियार हैं उनके लिए गोला बारूद बनाते हैं। उसमें 62,000 एकड़ जमीन उनके पास है और 80,000 के आसपास, 82,000 के आसपास उनके कर्मचारी। उसको सबको 4-5 में बांट के निगमीकरण कर दिया, जो कि इस देश की 35% आयुध जो हमारी आवश्यकता है उनको पूरा कर रहा है। आज वो सब जो उनके क्षेत्र हैं उनको प्राइवेट लाइसेंस देने का काम। इस तरीके से पूरे देश के पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं एक सवाल खाली करता हूं, इंदिरा जी ने अगर 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो क्या किसी दलित का बच्चा, पछड़े का बच्चा या आदिवासी का बच्चा बैंक में ऑफिसर हो सकता? ये सारे निजी कर देंगे तो वो रोजगार कम करेंगे। रेलवे में पहले आप समझिए कि 18 लाख कर्मचारी थे, फिर 12 लाख कर्मचारी हुए और आज उस बैंक रेलवे को प्लेटफार्म तक बेच दे रहे हैं, स्टेशन तक बेच दे रहे हैं और ट्रेन तक बेच दे रहे हैं। 26,000 करोड़ का घाटा इस वर्ष रेलवे में दिखाया गया। मैं आप लोगों से के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था पर चोट हो रही है, रोजगार पर जो चोट हो रही है, चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए, ये आगे आने वाले देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा और नौजवानों को बहुत हताशा होगी। तो मोदी जी ये देश अराजकता की तरफ आप धकेल रहे हैं। और इस देश के अंदर इस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक, इन सारे क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर विभाजन करने का काम ये कर रहे हैं। ये भारतीय समाज के लिए उचित नहीं। और जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे हैं, उससे समाज हिंसक हो। पहले प्रधानमंत्री क्या हिंदू दुनिया में पहला प्रधानमंत्री होगा जो और निंदा और आत्म प्रचार, इसके अलावा कभी भी उनका कोई भाषण नहीं। हमेशा पर निंदा करेंगे। 7 साल से आप सत्ता में, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं देश के लिए?
लेकिन जब तक वो निंदा पर दूसरे की नहीं करेंगे तब तक उनका कोई भाषण पूरा नहीं होता। और आत्मप्रचार, जितने भाषण आप देखेंगे देश के नाम, उसमें आपको यही दो चीजें मालूम पड़ेगी, मोदी, महंगाई और महामारी, इन तीनों से इस देश के लोग त्रस्त हैं। और मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही की वजह से इस देश के लाखों लोग मरे। अभी कोविड से लड़ने की बात चल रही है और दिल्ली में जो डॉक्टर्स हैं उनको लाठियों से और चांटों से लड़कियों को मारा गया। और दूसरी तरफ आप कोविड से लड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए ये देश बहुत खतरनाक मोड़ पर है, संकट में है। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों को, सबको बोल बंद करके इस लड़ाई को पूरे देश के पैमाने पर लड़ रही है और आगे आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे। थैंक यू। Any questions from anybody, please? इस लड़ाई में हम आप लोगों का भी कोई मदद चाहते हैं। Okay? Thank you very much.